है जी ये देखो आज हम पियेंगे रेड बुल हेल। क्या कहते हैं इसको भाई? तू मैनू ऐ दस सवेरे सवेरे बीरा ले आना है कोई बात नहीं। की पीना है बीरा? हैल की हुंदी है? हेल होंदी कैफीन। कैफीन बीयर नशा ठेका नॉट ठेका इज अ कैफीन। मतलब कादी बनती है ये? अल्कोहल नहीं है ਇਹਦੇ ਚ? नो बिल्कुल भी नहीं का। देखो भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है, सुबह सुबह ही चाय की जगह हेल चलती है। हमें के वो चलती नहीं ना तो मैं स्पीकर बोलता उस टाइम। यस सर। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਭਾਈਆ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਟੈਕਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੀ ਚਿੱਤੜ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੰਗਾਣੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦਿਖਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਦੇ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗਲਤ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਲੌਗ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ? YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜਗ੍ਹਾ personal ਦੇਣਾ? ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਬਾਈ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਫੇ ਪਾ ਲਈ। ਆ ਵਿਖਾ ਪਿੰਦੇ ਵਿਖਾ। ਪੀਂਦੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੈ ਫਸ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਿਗਾੜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਪੀਂਦਾ ਗਾ? ਪੀ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਤੇ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਲੈ ਲੈ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੀ। ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈ? ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੋਲ ਜਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਐਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪੇਜ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਵਧੀਆ ਡੋਡੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। कहना क्या चाहते हो? ਥੋੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਵਧਾਓ। कहना क्या चाहते हो तुम? ਜੋ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ। मेरे को एक बात बता। लोचे में पहुंचे तक देख कोई थां है कड़ा रखने की? ਵਿੱਚ ਬਾਗੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂ। माई ਹਰਿਆਣਵੀ ਚਾਲ ਜਾ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਨਟੇਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। फोकस ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਸ ਜਾਂ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਹੈ ਦਈਏ? ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਸੁੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਬਈ 4-5 ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਡੇਲੀ ਪਾਓ। ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੁੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਡੇਲੀ ਵੇਖਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋਆਂ। ਸੁੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਭਾਬੀ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੂਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਾਰ ਆਪੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ ਤੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। करेंगे ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਲੈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ। ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ। ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਰ ਸਾਰੀ ਐਡਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ? ਹੈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ? ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਤੇਰਾ। जो है फाउंडेशन के अंदर साथ दे रहे हैं। हमारे सुरक्षक है ये फाउंडेशन के। समाज सेवा का जो काम है हमारे जैसे रक्तदान कैंप लगाना, नशा मुक्ति कैंप लगाने। ठीक है, ये अमनदीप बजाज जी हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गौरव जी को जानते ही आप सभी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो आज का जो कार्यक्रम नानक जी से बात हुई थी यहाँ पर इलाहाबाद का जो नशा बढ़ रहा है, नशे को लेकर और सामाजिक कार्यों को लेकर, इसलिए इनसे बातचीत हुई। बातचीत के अंदर ये था कि किसी तरीके से यहाँ पर जो है बेटा बचाओ अभियान और फाउंडेशन की जो कार्य करने की घोषणा की जाए। यहाँ पर जो समाज सेवी लोग हैं उनको साथ जोड़ें ताकि जो है इलाहाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो तहसील है, ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सामाजिक कार्यों का और कोई मकसद नहीं है संस्था का। सिर्फ सामाजिक कार्यों के अंदर ही हमने आगे बढ़ना है।
किसी की कोई ज़रूरत है उसको पूरा कैसे करवाना है, ब्लड की कमी है उसके लिए रक्तदान शिविर लगाना और नशा मुक्ति, ये सिर्फ 2 ही प्लान हैं हमारे कि हम लोगों ने लोगों को खून कैसे दान करना है, थैलीसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं उनको कैसे बचाना है, उनके लिए कैसे हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। हमारा जो एक तो होता है ना ब्लड डोनेट करना, उसमें तो क्या उसमें थैली ले ली जाती है, स्टोर करते हैं उसको, जरूरत पड़ने पर पेशेंट को मिल जाती है। एक होता है थैलीसीमिया ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उसकी सभी की ही चीज़ों के ऊपर जो है संस्थाएं काम कर रही है। अमनदीप बजाज है, इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जो गरीब बच्चे हैं उनको स्टेशनरी और सर्दियों में जो है गर्म जूते जुराबे या जो जर्सी वगैरह दी जाती है उसका उठाया, और अब तक जो है इन्होंने कम से कम 250 से 300 परिवारों के बच्चों को जो है हेल्प करी है। अभी शुरुआत है इनकी ये चीज़, धीरे धीरे जो है इलाहाबाद शहर में भी शुरू करना है, रानिया तहसील इधर काड़ा वाली डब वाली पूरा सिरसा शहर कवर करना है। इस बैटर के ऊपर लेकर मेरी नाना जी से बात हुई थी तो उन्होंने इसलिए ही आज की ये मीटिंग रखी है जी। और कोई किसी भी तरह की जो भी संस्था के बारे में जो बातचीत आपसे करनी है वो आपको विस्तार से समझाएंगे हम धीरे धीरे। अभी आधा पौना घंटे में हम आपको फ्री भी कर देंगे साथ में, ठीक है ना जी। बाकी दयानंद शर्मा जी और विस्तार से समझाएंगे आपको। एक बार सबका परिचय हो जाएगी। हाँ जी नानक जी इन सब की इंट्रोडक्शन जरूरी है। ये अपने आप ही दे दें बैठे बैठे। हाँ हाँ बताइए। और सभी से रिक्वेस्ट है जो भी हम मीटिंग बैठे हैं इसका ध्यान से सुनो, करना ना करना वो अपना है, क्योंकि ये हमारे भविष्य के आने वाले बच्चों के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आने वाला टाइम जो है नशे में बहुत बच्चे आजकल देखिए कहाँ तक ये बच्चे जा रहे हैं। भी नशा भी हमारे लिए कितना घातक है। हम किस लिए बैठे हैं, हमारी मीटिंग किस लिए है, ये हम बैठे हैं इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे हैं जो सेफ रहें, ठीक है जी। तो पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद, हमारे इलाहाबाद में पधारे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और विकी जी हैं जो कपड़े का काम करते हैं, ये अंकल जी हमारे नामधारी कटला जी है शुमार, ये प्रवीण जी मोबाइल वाले हैं, ये दयाल जी हैं इनके नाम, अमरजीत जी, लक्ष्मण मास्टर जी हैं जो सरकारी टीचर रह चुके हैं। अच्छा। डॉक्टर ने जसवीर जी, हरी सिंह जी, ये 5 बार इलाहाबाद के इनके पिता मेंबर रह चुके हैं। ठीक है जी। अमरजीत सिंह जी हैं, ये हमारे टेंट का जो सारा मैनेजमेंट करते हैं। ये अमरजीत जी हैं, ये अपने हाँ अमृतपाल गुरनाम सिंह जी जो ये वेल्डिंग का काम करते हैं। डॉक्टर जी हैं जो हमारे इलाहाबाद के पूजनी की हैं, क्योंकि इन्होंने 79 बार ब्लड दे चुके हैं इलाहाबाद की। बहुत बढ़िया जी डॉक्टर राम प्रताप जी, ये हाँ जी सोखल, ये हमारे हीरे हैं जी हमारी टीम में शामिल हुए हैं। और पूरन सिंह ठाडू जो ये सारे इलाहाबाद के पूरा एरिया हरियाणा पंजाब सारा ये केबल के मशहूर है नेटवर्क में, इनका जाल है पंजाब हरियाणा राजस्थान सारा। पूरन सिंह ठाडू, गौरव जी तो हैं जी, तो नानक सिंह जी आपका सेवादार है। अच्छी टीम है आपकी सारी, बहुत बढ़िया। ये बड़ी खुशी है इस बात की, कई बार मीटिंग वगैरह में जाना होता है, लेकिन जैसा नानक जी ने आज जो डिग्नेटरीज बुलाए हैं, जो लोग आए हैं, वो वास्तव में आज की जो बैठक है उसका जो है, दुखियों का दुख हरण ना करो, चाहे वो कोई मुस्लिम भाई हैं या सनातनी हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं, लेकिन हर धर्म में हर जाति में हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो कौम इस देश और समाज के लिए जो काम आई है सदा से, जिन्होंने बीड़ा उठाया था इस देश को आज़ाद करने का भी और उसके बाद भी, मेरा गांव खारियाँ है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। बच्चे थे हम तो ये सुनते थे कि भाई जिस एक बस में शाम के समय जो शहर से ना हर गांव में बस एक लगभग आती थी, बड़े गांव में, तो कहता है भाई औरतें देखते हुए जिस बस में एक सरदार बैठा तो उसमें बैठूंगी, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करती थी। इसीलिए तो मैं एक बार फिर पूर्ण सिंह जी को बधाई दूंगा कि वैसे तो हम समाज के सभी अंग हैं, चाहे कोई भी जाति है, कोई भी हमारा पंथ है, अपना जो एरिया है ये खास करके जो है मस्तानगढ़ साहिब में भी गया था एक बार
जो पहले पूज्य गुरु जी थे उनके हाथ से गाय का दूध पिया था। तो अपनी जो धरती है खास करके हरियाणा पंजाब जो है ये गुरुओं की धरती है। और बड़ा दुख होता है कि आजकल जो माहौल बन रहा है कि इतनी सशक्त कौम होते हुए, इतने हम लोग बड़े जागरूक होते हुए भी आज की जो हमारी पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे परिवार जिनमें घर में एक बेटा है, अच्छा खासा उनका अपनी लैंड होल्डिंग है, सारे साधन संपन्न है। कई तो ऐसे देखे हैं जिस बच्चे की शादी भी हुई है 25-30 साल की उम्र में और वो इस नशे की भेंट चढ़ जाता है, चिट्टे की भेंट। घर के घर जो तबाह हो गए, परिवार के परिवार तबाह हो गए। तो मैं आज आपके बीच में यही संदेश दूंगा कि हम इस धरती पे जो आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस जगह पे हम हैं जितना हम कर पाते हैं। सभी लोग सभी काम नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी 79 बार जो है ब्लड डोनेट किया, हर आदमी नहीं कर सकता। ये फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने कहते ना करे सो करतार, उन्होंने हर आदमी की ड्यूटी डिफाइन कर रखी है परम पिता परमात्मा ने, जो भी वाहे गुरु अल्लाह अकबर जो भी है, कि किस आदमी ने क्या काम करना है। और आप लोगों में लगन थी। अमन ने, तरुण ने मुझे बताया कि भाई इस तरह एक मीटिंग है इलाहाबाद में। हालांकि मुझे आज बाहर जाना था तो ये कहने लगे नहीं गुरुजी आपने चलना है। मेरे विद्यार्थी रहे हैं, ये जो बीच में जो इंट्रोडक्शन करा रहे थे हमारे तरुण भाटी, ये एंटी ड्रग्स मैन के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे सरकार ने 10, 11, 12 वर्ष शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि अगर बेटे बच गए तो बेटियां अपने आप बच जाएंगी। तो सरकार ने इनको, सीएम साहब ने सम्मानित भी किया। जनरल नॉलेज की बुक्स के अंदर भी इसका नाम है कि बेटा बचाओ अभियान का प्रणेता कौन है। तो ऐसे सिरसा के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बहुत से युवा हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम कुछ करें। जैसे अमन बजाज और इसके मित्रों ने यहाँ चामल के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करे। हम भी ना ऊंच होता ना नीच होता है, वो अपने कर्म से होता है, अपनी सोच से होता है। मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। अभी गुरु तेग बहादुर जी का आगे आना है। मैं सिरसा ब्राह्मण सभा का प्रधान भी। मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि जिस ब्राह्मण के घर में अगर गुरु तेग बहादुर जी की चित्र नहीं है तो वो ब्राह्मण ही नहीं है। जिसने अपना पिछोकड़ भूल गए जो आदमी, ब्राह्मणों के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिस कौम को बचाने के लिए जिस महान पुरुष ने, जिस प्रणेता ने अपने बच्चे वार दिए, अपना सब कुछ खत्म कर दिया, अगर उस कौम के अंदर उस इंसान की कोई चित्र नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। किस लिए जीना। और मैं जाति धर्म की जब तक बात करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। भाई मतीदास सतीदास भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने शीश चिरवा लिया। और वो गंगू पंडित भी ब्राह्मण था। तो इसलिए हमने किसी जाति को किसी पर्टिकुलर चश्मे से नहीं देखना। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। दूसरी बात एक बताऊं मैं आपको, ये रिसर्च का विषय है। जितने भी गुरु थे उनमें से जट सिख कोई भी नहीं हुआ। कोई हुआ तो बता दो। लेकिन आज हमारे जट सिख भाई जो है किस प्रकार अपने धर्म के लिए, अपने कौम के लिए खड़े करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। महान पुरुष की, किसी अवतारी पुरुष की कोई जाति नहीं होती, उसका एक ही जाति होती है, मानवता। और वो उसी एंगल से सबको देखता है। तो मैं इन्हीं बातों को आपके बीच में रखने के लिए आया हूँ कि समाज के अंदर जो बढ़िया बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, पढ़े लिखे मास्टर जी बैठे हैं, ऐसे जो टीचर्स हैं और जितने प्रोफेशंस हैं समाज के अंदर, हमारा अलग अलग जो एक दायरा होता है। कहते हैं कि हर चौथा आदमी सारी दुनिया को जानता है, क्योंकि आप इनको जानते हो, ये कुछ 4-5 लोगों को ऐसे को जानते हैं जिनको आप नहीं जानते, वो आगे वाले उनको जानते हैं। सीरीज होती है। तो जो अच्छे काम करने वाले होते हैं वो अपना काम चूज कर लेते हैं, वो अपनी चीज़ को
पसंद कर लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी थे, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई होती है, तो वो आदमी उस समय इतने पॉपुलर हो गए, देखो इतने समय में। और आज आपके शहर में क्या घटित हो रहा है कि हम इतने स्लेव हो गए हैं, अपनी अपनी चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि पता ही नहीं रहता पड़ोस में क्या हो रहा है। ये सोशल मीडिया में चीज़ आ जाए, अखबार पढ़ने का तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। कुछ जो है आजकल के जो हमारी कैटेगरी जो नेता लोग हैं, उन्होंने परिवेश इतना गंदा कर दिया, उन्होंने अपने हमारे बीच में इतना जहर भर दिया कि वो किसी भी चीज़ को राजनीतिक रूप से देखते हैं कि मेरा फ़ायदा किससे होना है। तो इन चीज़ से हमने ऊपर रहना है। हमने किसी भी राजनीतिक सोच करना, विरोध करना है। अगर मैं पक्ष लेता हूँ किसी का पर्टिकुलर, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन समाज के लिए मैं एक अपना जो देश था, उस देश में कितनी मानता थी देखो आप। और अपना जो खास करके एरिया है ना पंजाब का, हम तो बहुत रिसोर्सफुल हैं, हमारे पास तो खाने की तो कमी नहीं है। ठीक, अभी भी गरीबी कुछ परिवारों में है, लेकिन आप ऐसी जगह छत्तीसगढ़ में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, उड़ीसा में जाइए, ऐसे ऐसे लोग हैं कि देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जंगलों में रहते हैं लोग, उनको ये नहीं पता कि ये देश कब आज़ाद, पता है। लेकिन कोई भी आप राजनीतिक दल का एजेंडा उठा के देख लो, इवन मुस्लिम लीग है या कांग्रेस है, इनेलो है, बीजेपी है, बसपा है, कोई भी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। लेकिन मैं इस निचोड़ पे पहुंचा हूं, आदमी कैसा है, सीधी बात ये है। बीच हर पार्टी में हर तरह का आदमी मिल जाएंगे आपको, ईमानदार से ईमानदार, बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगे। आदमी पे डिपेंड करता है कि वो बंदे के दिमाग में क्या है, उसके बंदे के दिमाग में खुराफात है या उस बंदे के दिमाग में देश के प्रति प्रेम है, समाज के लिए लगाव है, उस पर डिपेंड करता है। समाज हमेशा कोशिश करता है, हम कोशिश करते हैं हर बार, जब भी हमने समझ संभाली है, आप लोगों ने संभाली है, एक पॉलिटिकल पार्टी बदनाम होगी, हम दूसरी को लेते हैं। इसलिए एक उम्मीद है ये समाज के लिए, देश के लिए भला करेंगे, फिर वो उसके भी गुरु निकलते हैं। तो इस करके मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों से इस देश को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे कोई सी भी, डुग डुगी दुनिया बजा लेती है। मुझे एक दिन एक अपने बाउद्दीन के पास बरुवाड़ी गांव है, पता ही होगा आपको, और ऐसे करते करते मेरी नज़र में 30-35 बच्चों को तो मैं जानता हूँ जो राम को प्यारे हो। तो इस चीज़ को, हाँ, ये सीखते कंपनी से। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, एक मेरी बात छोटी सी कह के मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं 14 साल की बच्ची, चिट्टी और गोलियों की आदि, नाम बता दूंगा, डिंग गांव के थे वो, मेरे जानकार थे। स्कूल में पढ़ने में अव्वल, 8th क्लास में 99% नंबर उसके, 6ठी 7वीं 8वीं। 9वीं क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तो 2-3 लड़कियां, वो भी कोई पढ़ने वाली होंगी, वो उनकी संगत में आ गई और गोलियां खानी शुरू। रिजल्ट क्या हुआ, 1 साल से वो लड़की घर से बाहर, कभी सिविल हॉस्पिटल में, कभी जे कॉलोनी में, कभी बस स्टैंड, कभी और। 4-5 दिन पहले वो बेचारा गरीब परिवार है, दिहाड़ी करने वाले हैं, इसी प्रकार से उनको मिल गई वो। तो एक मेरा स्टूडेंट है भट्टू का, उनका जानकार था, वो लोग भी मुझे जानते थे, क्योंकि में मेरी पोस्टिंग रही, इंचार्ज प्रिंसिपल रहा मैं वहाँ, वो नाम से जानते थे मेरे को, मेरे पास ले आए कि गुरुजी ऐसे ऐसे हम अभी इलाज कराएंगे अपने। 3 दिन से उसको एडमिट करा रखे सिविल हॉस्पिटल। और आपको पता है नशे वाला जो छटपटाता बहुत है, उसके मम्मी डैडी साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिस बड़ी जोर की करनी पड़ती है। बंदे को गुस्सा भी आता है कि उनके अंदर से जब वो चीज़ हुक की उठती है ना,
तो वो ना माँ को कुछ समझता, ना भाई को, ना बहन को। रोज अखबारों में पढ़ते हैं अपनी माँ को मार दिया नशे के लिए, बाप को मार दिया। तो कहते अब देखो, अभी तो कहते कलयुग के पैर ही पड़े हैं, तो आगे क्या क्या होना है। तो मैं एक बार फिर आप सभी बुज़ुर्गों को, साथियों को, दोस्तों को बधाई देता हूँ। और ऐसे जब बुज़ुर्ग अपने साथ होंगे, आशीर्वाद जब सबका साथ होगा, तो समाज के अंदर कुछ कर गुजरेंगे। अच्छे अच्छे लोगों को आपने इसमें शामिल करना है। और आगे जैसे ये तो नशा मुक्ति तो एक चीज़ है, क्योंकि आजकल नशे का एक तो पर्यावरण का भी थोड़ा ध्यान करना है। ब्लड डोनेशन कैंप्स है, जैसे थैलीसीमिया का बताया तरुण ने, थैलीसीमिया के अंदर ब्लड भी नहीं निकलता। वो 2 स्लाइड होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में उसका कैंप लगवाने हैं। वो सिर्फ स्लाइड टच करनी होती है बॉडी के। तो वो थैलीसीमिया के इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है। तो जिन बच्चों को ज़रूरत है वो फिर उसका टेस्ट होता है, उसको वहीं बुला लेते हैं बंदे को, कोई ज़्यादा उसमें चक्कर नहीं होता और उसकी जान बच जाती है। थैलीसीमिया के बहुत पेशेंट्स हैं अपने संसार भर। और जैसे ट्री प्लांटेशन है, तो ये तो आपका इलाका ही एलनाबाद साइड का, तो जीवन नगर, संत नगर, ये नाम ही ऐसे हैं। गुरुओं ने जीवन दिया है, संत तो यहाँ मिला है अपने को। तो ये सब चीज़ें बस जो अपने धर्म में लिखा है ना, वही काम हमने कर देना है, वही काम हमने अपने जीवन में उतार लेना है। और याद करना उन गुरुओं को ही बस, जिन्होंने हमें सच्चा रास्ता दिखाया था। कृत कर वंड खा, ये तो अपना फिलॉसफी है, करे सो करतार। और जिसने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया उससे बाहर कुछ नहीं है। मेरा तो निचोड़ है लाइफ का। बाइबल मैंने पढ़ी है, गीता मैंने पढ़ी है, रामायण, वो तो मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हूँ, ये चीज़ें मुझे पता ही है। लेकिन जो मैंने गुरु ग्रंथ साहब में जो चीज़ देखी है, एक तो मैंने ये निचोड़ निकाला है कि ये सबसे जितने भी धर्म है संसार के, उनकी जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो इसमें डाल दी हैं। लेटेस्ट है, 600 साल 700 साल लेटेस्ट है और पाखंड से दूर है। ये जो आजकल की जो चीज़ समाज की जिसमें ज़रूरत नहीं है, उसको किस लिए करना। और कहीं चले जाओ, जो लंगर व्यवस्था अपने गुरुद्वारों की है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। कहीं चले जाओ आप, मेरा भगवान की दया से पूरे भारत में लगभग घूमना रहता है, कहीं मध्य प्रदेश में और कहीं नांदेड़ साहब, कहीं चले जाओ, वहाँ कोई ना जाति पूछी जाती है, ना कोई गोत पूछा जाता है, कोई आओ और लंगर छको। तो उस चीज़ को हमने बस और आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार फिर सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। पिता जब बच्चे का जन्म होता है ना, वो वहीं से ही निकल कर आती है। अगर उसका जो फादर है, शादी से पहले एक माइनर है और एक मेजर है, या तो पत्नी माइनर है लड़की, अगर वो मेजर है, अगर वो माइनर है या ये मेजर है, तो वो संतान जो है ना, उसको 100% यही चांस रहेगा कि उसके बच्चे को थैलीसीमिया होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर उनकी अगर रिपोर्ट मिल जाती है, बड़े डॉक्टर जो हैं वो तो ये कहते हैं कि वो जैसे पुराने टाइम में कहते हैं सफाई करवा दो, भी वो बच्चा जो है थैलीसीमिया पीड़ित, वो बच्चे का जीवन नहीं होता। वो बच्चे का जो जीवन होता है ना, बहुत ही छोटा जीवन होता है। उसका सिर्फ जीवन यही है कि उसको मंथली जो है ब्लड चढ़ता है और वो 1 महीना बेचारा निकाल लेता है, फिर उसको अगले महीने वो ब्लड निकल जाता है और फिर उसके लिए 4 थैली का फिर इंतज़ाम कर लिया जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है सिर्फ 15 साल से पहले तक ही चलेगी। ये अगर 15 साल की उम्र क्रॉस होगी है उसकी मैचिंग नहीं हुई इतने टाइम के अंदर, किसी के साथ उसका DNA मैच नहीं हुआ, किसी के साथ उसकी HLA रिपोर्ट मैच नहीं हो रही, तो उस बच्चे का बाद में 15 साल क्रॉस होने के बाद उसको कोई भी बचा नहीं सकता, उसका इतना ही जीवन है। दूसरा, हर महीने जब उसको ब्लड चढ़ेगा, हर महीने निकलेगा, उससे क्या है कि उसका शरीर का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है फिर 15 दिन की जरूरत पड़ जाती है, फिर 15 दिन में ब्लड चढ़ा हुआ, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा हफ्ते की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि एक डॉक्टर हैं बहुत बड़े, उन्होंने इन बच्चों के ऊपर और ब्लड कैंसर के ऊपर रिसर्च किया उन्होंने, क्या हम इनका जीवन बचा सकते हैं। तो वो जीवन बचाने के लिए ही उन्होंने एक ऐसा NGO तैयार किया दात्री के नाम से। चाहे आप उसको यूट्यूब पर और गूगल पे जाके सर्च मारो ना, तो पूरे प्रॉपर विश्व की जानकारी मिल जाएगी उसके अंदर आपको। हम उस NGO में काम कर रहे हैं, साथ साथ हम प्रचार करते हैं भी हम लोगों ने कैसे उनका जीवन बचाना है। मैं खुद एक मतलब स्टेम सेल डोनर हूँ, मैंने अपना फॉर्म भर दिया
मेरी रिपोर्ट आने वाली है, जनवरी तक मेरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मैं खुद अपने टेस्ट देने को तैयार हूँ। उसमें क्या है कि उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ है कि अगर कोई इंसान उनका जीवन बचाने के लिए तैयार है तो वो कैसे बचा सकता है, वो सिर्फ कुछ नहीं है, उसके सिर्फ थूक का सैंपल लिया जाता है उसको, ठीक है। थूक का सैंपल लेकर उसको अमेरिका भेज दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट 3 मंथ के बाद जिस जो डोनर है उसके मोबाइल पर आ जाएगी, ठीक है। 1 महीने के बाद आपको पता लगेगा कि जो आपकी HLA रिपोर्ट है वो कनाडा के अंदर किसी लड़की के साथ मैच होगी जी, केरला में किसी के साथ मैच होगी, तमिलनाडु में होगी, किसी के भी साथ आपको बता दिया जाएगा, जेंडर बताया जाएगा, बेटा है या बेटी है, धर्म बताया जाएगा उसका भी, वो कौन से धर्म से है, और उसका शहर बताया जाएगा। वो तीनों चीज़ें बताने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसका जीवन बचा सकते हो। तैयार हो बचाने के लिए तो ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस चीज़ का। ज़्यादा उम्र का आदमी तो इसमें जा भी नहीं सकता, ये तो सिर्फ एक 50 साल तक की जो एज के है, 18 और 50 के बीच के हैं, जो वही इसमें आ सकते हैं। उसके बाद ही आगे की जानकारी के ऊपर जो है ना वो शुरू होता है। अगर वो एग्री हो जाता है तब, एग्री होने के बाद उसको यहाँ से लुधियाना लेकर जाते हैं, उसके सारे बॉडी के टेस्ट होते हैं आदमी के, क्या इसके ये प्रॉपर शरीर इसका ठीक है या नहीं है। उसकी रिपोर्ट आती है जी 1 मंथ के बाद, फिर वो मंथ के बाद रिपोर्ट आएगी, फिर उस रिपोर्ट की मैचिंग उस बच्चे के साथ की जाएगी। क्या 1 लाख अगर डोनर मिल जाते हैं हमें 1 लाख, तो उसमें एक ऐसा इंसान होता है जिसकी मैचिंग होती है। मैं तो ये कहता हूँ जी वो भाग्यशाली इंसान होता है वो जिसकी 1 लाख के अंदर एक बच्चे की अगर किसी मैचिंग हो रही है, मैं उसको भाग्यशाली मानता हूँ। मैंने अपना फॉर्म भरा है ना, तो मैंने इसलिए भरा है क्या पता मेरी किस्मत हो कि मैं किसी बच्चे का जीवन बचा दूँ। अभी अमृतसर से एक सरदार है, सरदारों का लड़का है जी, उसका जीवन बचाया, वो भी सारा यूट्यूब के सारा मैटर डला हुआ है। किसी दिन यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम करेंगे स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ की जानकारी हम जरूर देने आएंगे। डॉक्टर साहब को बुलाऊँगा मैं चंडीगढ़ से। मैचिंग होने के बाद ही आगे का जो है ना सिस्टम शुरू होता है, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। फिर अगर वो बंदा वाकई में ही तैयार होगा डोनर के लिए, उसका फैमिली डॉक्टर है जो शहर का, जिस शहर का वो रहने वाला है, अगर वो कह देता है कि आपके स्टेम सेल देने से आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप डोनेट कर सकते हो, अदरवाइज आप ना करो। कोई प्रेशर नहीं है चीज़ में, सिर्फ टेस्ट जरूर कराओ। आपका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो 18,000 का टेस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे इस चीज़ का। जिस दिन पता लगता है कि उसकी मैचिंग हो गई है, वो तैयार है, तो फिर उसको 5 इंजेक्शन लगते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 18,000 रुपये है, वो फ्री लगता है बिल्कुल NGO की तरफ से, चाहे मोढे पे लगवाए आदमी, चाहे कमर पे लगवाए। 4 इंजेक्शन लगेंगे उसको। 5वां इंजेक्शन जिस दिन लगेगा वो लास्ट एंड फाइनल होता है। उसके सही 2 घंटे के बाद आदमी के शरीर के अंदर मान लो 1 लाख सेल है, वो उसकी क्वांटिटी जो है ऊपर बढ़ा देगा, 1 लाख के 2 लाख कर देता है। वो जो बढ़े हुए सेल हैं जो, वो DMC लुधियाना के अंदर वो निकलवा देते हैं, और वो उसकी थैली बंद करके वो जिस बच्चे को लगाया जाता है उसको दे दिया जाता है। बच्चे का जब जीवन बच जाता है प्रॉपर, उसको 1 साल हो जाता है, 1 साल सपोज करो कि मैंने अपने सेल दे दिए, मुझे नहीं पता वो किसके लगे। 1 साल के बाद जब बड़ा प्रोग्राम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड का, उसके अंदर उस परिवार के बच्चों को बुलाया, परिवार को बुलाएंगे, और वहाँ पर मुझे बुलाया जाएगा। वो 10 मिनट का, आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, वो मेरे को बता दिया जाएगा भी इस परिवार को आपने बचाया। वो लास्ट टाइम वहाँ मिलाते हैं और उसको सम्मानित करके उसको प्रेजेंट करते हैं। ये कार्यक्रम रहता है उसमें। बाकी जो है हमारी जो संस्था है वो नशे के ऊपर काम कर रही है। बेटा बचाओ अभियान, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, जिला प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन को साथ लेकर लगाते हैं कैंप। कोई नशा पीड़ित है उसका इलाज करवाइए आप लोग एक फ़ोन करना, मैं यहाँ पर फ़ोन करूँगा। सिरसा के डॉक्टर हैं, सभी को जोड़ा हुआ है इसके साथ, प्राइवेट डॉक्टर भी है, सरकारी डॉक्टर भी है। इनके जीवन बचाना बहुत ज़रूरी हो चुका आज के टाइम में। ये जो सुबह सुबह देख रहे हैं, ये खबर लगी है, जैसे रानिया के अंदर भी पीछे 2 लड़के एक्सपायर हुए हैं जी, एक ही करके। अभी पिछले जिस दिन SP साहब की ज्वाइनिंग हुई है, मतलब मान लो उससे 2 दिन पहले एक्सपायर हुआ। ओटू गाँव के अंदर बड़ी शर्मनाक खबरें हैं ये। अभी आ रहे थे इलाहाबाद शहर में, एंट्री कर रहे हैं, तो पहले होता था बड़ा मतलब अच्छा सिस्टम होता था, हरियाली दिखती थी, खट्टे खट्टे लड़के दिखते थे। आजकल दिखता है नशा मुक्ति केंद्र का फ़ोन नंबर,
समाज के अंदर बहुत ही गलत दिशा में चल रहे हैं युवा। कोशिश करो उनको बचाने की। कोई किसी से पैसा नहीं लेना, कोई किसी के साथ कोई मतलब ऐसा काम नहीं है कि किसी की जेब में हाथ मारना नहीं। कोई जेल का लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं है, बस जीवन बचाने में लगे हुए हैं। अगर बेटों को नशे से बचा लिया तो बहुत बढ़िया है। परिवार बचता है जी, परिवार बचते भी हैं जी। अभी तक हमारी संस्था ने 19 लड़के बचाए हैं सिर्फ 5 साल में। ऐसा नहीं है कि अंधेरगर्दी मचा रखी अपने आंकड़े बनाने के लिए या वैसे ही झूठी वाहवाही लेने के लिए। चिट्टे वाले लड़के बचा के दिए हैं। एक लड़का शराब वाला था जो, उसको बचाया, डी साहब से सम्मानित भी करवाया उस बच्चे को। अपनी फाउंडेशन को सीएम साहब ने 3 बार सम्मानित किया जी, 1 बार नहीं 3 बार कर चुके हैं। ये जो अभियान है इसमें साथ दो आप सभी। ऐलनाबाद के अंदर आप लोग जागरूक करो लोगों को कि हमें बेटे कैसे बचाने हैं। बाकी जो कार्यक्रम है बड़े कार्यक्रम करोगे, बुलाओगे, जिला प्रशासन को भी लेकर आएंगे यहाँ पर। अच्छा कार्यक्रम करते हैं, एसपी साहब को लेकर आएंगे, डॉक्टर लेकर आएंगे यहाँ पर। कोई बच्चा है तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मुझे बताओ आप किसका इलाज करवाना है, उसका प्रॉपर इलाज भी करवाएंगे। अभी पीछे भी हफ्ते पहले कौन सा काम है ये ऑटो से आगे बोली ये ऑटो लगेगी नानकपुरा इधर सर से तरफ जाते तो चेकअप होगा। प्रदीप ने मिलवाया जी, SHO साहब ने। आपके नहीं जी, आपके ऐलनाबाद हल्के का गांव है, बाजीगर समाज से है जी लड़के। तो करीब वाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर है वो गांव। हरिपुरा है जी, हरिपुरा है। गुरविंदर सिंह थानेदार गुरविंदर सिंह लगा हुआ है वहाँ पर। बाजीगर समाज के लड़के हैं। अभी SHO साहब ने बात कराई है पिछले हफ्ते ही मेरी, है ना। और दोनों भाई जी दिखते हैं, नाम नहीं बता सकता उनको, बाजीगर बाजी के दोनों भाई जी नशा करते हैं। और दोनों की वाइफ जो है रो रो कर मतलब उन्होंने बताई है सारी कहानी। तो अब जो है उनको पिछले 3 दिन से उनकी काउंसलिंग चल रही है और अगले सोमवार से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। हिम्मत करके आए आगे तो देखो बच जाएंगे, शर्म संकोच में फंसे रहेंगे तो देखो जी वो तो चलो चला जाएगा जी। जो इंजेक्शन लगाने वाला है या नशा करने, नशा तो देखो सारे ही माड़े हैं। मैंने जीवन के अंदर आज तक है ना, आज तक जीवन के अंदर ये क्या हुआ, अभी चिट्टे का नशा आने से ना तो शराब को लोगों ने ना मतलब उसका ये सोच लिया भी शराब कुछ भी नहीं है। नशा तो नशा ही है, चाहे वो शराब का है, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो गोलियों का है, चाहे वो किसी भी तरह का है। ये चिट्टा जो ज़्यादा हैवी हो गया, चिट्टा हैवी होने से क्या है कि अब मैंने ये भी देखा भी कई लोग कह देते हैं कि चलो शराब पी के ही आ रहा है बच्चा, चिट्टा तो नहीं लगा रहा। ये चीज़ भी गलत है, ये गलत है समाज के अंदर, ये चीज़ें गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अगर वो अच्छी चीज़ होती तो हमें वो बाजार में मिलती है, हमें ठेके पे क्यों मिलती वो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से बचाओ, मतलब है ना, जागरूक करो आप युवाओं को। मैं चाहता हूँ कि ऐलनाबाद के अंदर आप लोग अच्छे समझदार लोग पेशेंट को देना है, उसका खर्चा नहीं लगता, खर्चा नहीं है जी, संस्था को हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रशासन जुड़ा हुआ है साथ में। मैंने तो फार्म भरना, हमने दे देना है, बच्चा दे देना है और जाके प्रॉपर हम लोग उसे चेकअप करते हैं। सहमति उस बच्चे संस्था की तरफ से जो है उसको रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। सर थोड़ा सा ये बताइए, जो अगर मान लो यहाँ पे कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है तो वो संपर्क आपसे ही करना आपके यहाँ पर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है सरकारी? हाँ है जी, क्या नाम है उनका? कमलप्रीत है मेरे को। कमलप्रीत नशा मुक्ति पर है जी सर, वैसे यहाँ पे है नहीं, वो केंद्र वाला है। केंद्र नहीं, सिविल हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल है, डॉक्टर बैठा है सरकारी नशा मुक्ति को लेकर। नशा मुक्ति स्पेशल नहीं, नशे के लिए कोई स्पेशल नहीं है, सरसत तो है, सरसत तो है। तो आप लोग उसमें लेटर लिखो, एक लेटर लिखो, लेटर दो आप हमें यहाँ पर जो है। हाँ, इनकी तरफ से लिखवाएंगे, आप लोग से भी सिग्नेचर करना आना, आप सभी सारी टीम के देंगे। डी सबको भी यहाँ पर जो है डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। नशा मुक्ति का जो नशे पे जो काम कर रहा है डॉक्टर, उसकी ड्यूटी लगाओ आप लोग यहाँ पर। बच्चे जाने लग रहे हैं यहाँ से, हाँ, बच्चे तो सारे खराब हो रहे हैं बच्चे। हाँ, इतने डेली आप अखबार में पढ़ रहे हो जी, डॉक्टर हमारे शहर में है नहीं, इतना बहुत ज़्यादा नशा वो है। बच्चे को सबसे दाखिल करना पैंदा है। बिल्कुल जी, हालत देख कर जी उसकी। हाँ, अगर बच्चे के हालात मेडिकल से ही, दवाई से लेकर सही हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नाम से अगर उसको बाकी डॉक्टर शमशेर सिंह है, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं ये, काड़ावाली के अंदर 1 रुपये नहीं लेते बिल्कुल। एक बस पेशेंट होना चाहिए, एक उसका साथी होना चाहिए उसको संभाल करने के लिए। सर ये गुरनाम सिंह हैं, के ब्रदर हैं छोटे, हाँ हाँ, वो पहले
काफ़ी अच्छे कारीगर थे। हाँ हाँ वो पहले तो दारू बीच में छोड़ गया, अब दारू पीते हैं बहुत। दारू पीते हैं। अब डेली भी रहेगी। ट्रीटमेंट सारा करवाया है। पता क्या है, इसका सिस्टम ऐसा है कि वो ना पिए तो 6 महीने ना भी पिए, पीछे 6 महीने नहीं 5-6 महीने नहीं पिए, पीता दिन रात पीता तो फिर वो कसर पिछली भी निकाल दे। दिन रात है। अच्छा और होश में नहीं रहता। कितनी उम्र है? उम्र तो उसकी है 45 शादीशुदा है? बच्चे हैं। बच्चे हैं? और इतना अच्छा लड़का है जी, कहने का कारीगर बहुत तगड़ा है। काम कुम तो वो पिएगा ना तो करता ही है फिर कारीगर बहुत। तो पीने वाली नहीं, बहुत काम अच्छा क्या है वैसे उसका? काम वेल्डिंग है वेल्डिंग वेल्डिंग का काम है। कितने साल से पी रहा है? 10 साल से ऊपर ही हो 10 साल हो गए। 10 उम्र कितनी बताई आपने? 45 45 साल की उम्र है और 10 साल से पी रहा है वो। मिलवा देना, मेरा नंबर लो आप। वो सिर्फ सही है मौके पर मौके पर क्या सिरसा में काम करता है? नहीं, काम नहीं करता है, वो अपने बहन के पास है। अच्छा बहन के पास गया हुआ है। वो मकान बना रहे हैं अच्छा तो वही रह रहा है अभी। मौके पर वही है। कौन से इलाके में? मिल सकता हूँ उससे? हाँ वो बेबी रोड पे बेगू रोड पर किस जगह? संपर्क दे देंगे आपको नंबर। राम सिंह चौक आता है, हाँ हाँ उससे पहले ही एक पंप आता है, पेट्रोल पंप। हाँ, हाँ। साथ गली है, वो गली में अंदर है, थोड़ा सा अंदर। सामने जाके या पंप वाली साइड में नहीं, इधर चढ़ते सर। कीर्तिनगर। कीर्तिनगर। 100 रुपये दुकान है किराने की सीताराम जी की उनकी। हाँ हाँ है ना? उस दुकान में आगे जाके ना हाँ हाँ बस वही है। वही है। उनको नंबर दो, मेरा संपर्क करो, आज ही मिलता हूँ उससे। उसका नंबर है, फोन नंबर है कि ये ऐसे तो ये बड़े भैया उनके, ये मेरे भतीजे हैं, ये बड़े भैया उनके, यही बताएंगे सर कुछ आपको। यही नंबर इनका ही लेके जाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ दे दो, आप मारो, मुझे रिंग करो आप आओ, फिर सही आओगे कल सर जी, बाद में आपको मिलेंगे वहाँ बैठ। सर जी नंबर इधर बोल दो, नंबर बोलो अपना। 9588 इधर बोल दो बस। 57704 एक बार रिपीट कर दो। 9588 57704। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ 04 तरुण नाम से सेव करो आप। और उनको को भी मैं मिलने चला जाऊंगा, वो नहीं आएगा तो मैं मिलूंगा जाकर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मेरे अजय विशेष मीटिंग थी। आपको लगभग पता लग ही गया सभी बातों से। नहीं सर, नशे पे काम कर रहे हैं, आजकल नशे पे काम कर इस रहे चीज हैं। में जाना पड़ता चाहिए। ये तो लंदे नहीं इस काम में। मेरे को चाची ने बताया भी ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पैसे कमा लेना। काम छोड़ के आए मैं आऊँगा। किसी का भला होना अपने कुछ करने से क्या दिक्कत है? नशा मुक्ति केंद्र के लिए मीटिंग चल रही है। पोस्टिंग आपकी रिटायर हो चुके हैं कब? 3 साल हो गए, 2022 में। ड्यूटी रिटायर हुई। ये कहीं ना कहीं गांव का समाचार है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेली 4-5 की एवरेज निकल रही है इस टाइम। सभी जगह सर हमारी गली में था एक सुनहरे का लड़का था, वो क्या करता था, लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह बनाता था, लाइसेंस वगैरह। क्या किसी के पास चला गया, दोस्त के पास, वो क्या लगा रहे थे चिट्टा, वो कागज पे लगा के ऐसे पानी, कहता है कि ये क्या है, कहता है ये चिट्टा है, कहता लगा ले, कहता मैं नहीं लगाता हूँ। धीरे धीरे वो उसको फोर्स करता रहा, ये लगा ले वो आता जाता था, उसके पास काम थी, भी मेरे फाइल दे। वो एक बार कहता तू लगा के तो देख, कुछ नहीं होगा। उसने चलो लगवा दिया, एक बार लगा लिया, उसने लगा लिया तो हफ्ते 10 दिन बाद वो गेड़ा मारता था। आया तो कहता यार वो चीज़ दे यार जो तू मेरे को दी थी, कहता पैसे लगेंगे, कितने ही, कहता 500 रुपये। वो लत लगते वो मर गया, उसमें वो मर गया अपना सारा असली system जो ही खत्म। सच्चाई है ना मास्टर जी, हाँ अपना जो देश है ना बड़ा मजबूत है। क्या है चिट्टा? चिट्टा क्या चीज़ है इस पे कि चिट्टा ठीक है, शब्द है ये एक बात मेरे समझ हीरोइन में आई है, सर, स्नैक है इसमें। एक मिनट आपकी बात। एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, बड़ी अच्छी बात है ये। चिट्टा क्या चीज़ है, इस बारे में किसी को जानकारी मिली? केमिकल है ये। हमने नाम सुना है बड़ा, चिट्टा चिट्टे से इतने मर गए, हमने मरते ही देखे, चिट्टे से कोई बसता तो है नहीं जी। ये तो है नहीं चिट्टे ने किसी घर बसा दिया हो, उजाड़ा ही है। क्या चीज़ है ये एक्चुअली क्या चीज़ है ये? पहले क्या होता था, हीरोइन, ब्राउन शुगर जो बोला करते थे। ये मतलब स्टैंडर्ड के नाम होते थे, इसको मतलब वो करना ना अपना स्टैंडर्ड मानते थे। वो था तो नशा, वो धीरे धीरे बड़े महंगे नशे थे ये, लिए नहीं जाते थे आम आदमी से। हम तो ये कहते लेने ही नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों ने अपना जीवन ही इसी चीज़ पे चला रखा है। लास्ट में आके वो एक केमिकल बन गया। ये मतलब कैसे युवाओं तक पहुँचाया जाए।
पड़ोसी देश है ना जो अपने, पहले पुलिस की भर्ती होती थी, फौज की भर्ती होती थी, बड़े हट्टे कट्टे लड़के जाते थे वहाँ पर। हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए ये चीज़ का ठीक है, पड़ोसी देशों ने जो है ना नाइजीरियन अफ्रीकी लोग उनका सहारा लिया सप्लाई करने के लिए। आपको ध्यान होगा चिट्टे की जो बड़ी खपत है ना उसमें बड़े पता नहीं कितने दिल्ली के नाइजीरियन पकड़े गए। ये लोग क्या है धीरे धीरे शहर में पहुँचा रहे हैं और युवाओं को जो है खोखला करने में लगे। अब ये ख़त्म ही हो जाएगा तो कहाँ से भर्ती हो जाएगी ये बताओ आप। आपने तो जाना नहीं भर्ती में ना, मैंने जाना, किसने, हमारे बच्चों ने जाना था। और हमारे जो शहर के बच्चे हैं जो हैं वो तो उनको ये लत लगी तो फिर चांस ही नहीं है जी। चांस ही नहीं है। चांस क्या मैं करूँ, उम्मीद ही नहीं है जी, 1% की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल देश के सैनिक ही नहीं होंगे, देश कैसे बचेगा? कैसे बचेगा जी? आप नहीं बचा सकते ना, मैं बचा सकता। वो तो जो वहाँ पर जिसकी ड्यूटी है वो बचा सकता है जी। तो हमें आज़ादी मिली थी वो इस काम के लिए थोड़ा मिली थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ जी, और मैं सारा सिस्टम छोड़कर मैंने जो ये फाउंडेशन बनाया हुआ है। और कोई कहता नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं किसी का। जाते हैं, समझाते हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो अपने घर, हम अपने घर। ये अपने यहाँ पर प्रोग्राम करके गए थे हम सियाल जी के, जिसका पीछे मर्डर हो गया था, उनके वहाँ 4-5 प्रोग्राम करे। गुरु जी के बहुत अच्छे मित्र थे, गुजरने से 10 दिन पहले भी इनसे मिल के गए हैं वो, जब उनका मर्डर हुआ है। हमारे पड़ोसी हैं वो। हाँ, बड़े बाहर उधर ही बड़े नेक आदमी थे। एक फोटो जरूर करा लें फोटो। हाँ जी बढ़िया। अरे धन्यवाद सर, ठीक है जी। आशीर्वाद बना के रखो बच्चों दे। कितनी आई होगी? मेरी 75 साल हो गए। 25 ही पे बात अरे 15 साल का है ना। 15 पे यार 25। ठीक है सर। कोई उसको कह देना, हमको डरो ना किसी को। 1 रुपया भी को मांग रहे, 1 रुपया किसे करते हैं तो भी हम बैठे। क्या रिपोर्ट है? हमारा हो रिपोर्ट तो कर पड़ी है। मैचिंग नहीं हो रहा? रिपोर्ट है आपके पास? कितने टाइम पहले कराई है आपने? नंबर बोलना आपका? साल 1.5 साल हो गया। नंबर बोलो। 1573 073। उसकी अच्छी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करो आप।